नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। सीआईआई की ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। बाजार में भी जबरदस्त डिमांड बढ़ी है। वहीं वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों की भी जमकर तारीफ की है। If only the chip shortage was not there, and if only the shipping liners and container shortage was not there, you'd still have even the passenger cars, two-wheelers, all being sold in a big number. Mobile phones, demand exists, people want them. But for something which is completely extraneous, nothing to do with Government of India, you saw that those were the areas in which manufacturers could not capitalize on this so-called revenge shopping. So the demand side of it is now able to completely manifest itself. I remember people telling us, oh no, you've not done anything on the demand side. It's all right, you're doing so much for the supply side. And I've always held it as a principle that the compartments in which we would want to put demand side and supply side are fantastic when you're in a classroom situation where you're teaching students as to what constitutes supply side in an economy and what constitutes the demand side. But in the real economy, there's no watertight compartmentalization like that. Things do flow from one to another. The banking sector has remarkably turned around. They are no more the laggards of the Indian economy. The NPAs have been drastically brought down. The recoveries are on a high within the last 1 year. I'm not giving you the data, I'll share it with you. I don't want to bore you with the numbers. But the sum of the story is NPA is down, recovery is going up. More than 10,000 crores have been raised by the banks, public sector banks, from the market. They are not looking at government to fund them for, do recapitalize us, we are short of money. No. And just in the last 3 weeks, ending Deepavali, banks went on a credit outreach program, which we had announced, saying from the 15th of October, banks will go out and extend loans to everybody who want, because we want demand to be up. Because when I did announce this in Mumbai, when I was reviewing the banks, we still wanted demand to pick up. More than 75,000 crores have been distributed to 4 or 5 different categories. एक और वित्त मंत्री चिप की कमी को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं मार्केट के दिग्गजों को उम्मीद है कि जल्द ही इस किल्लत से निजात मिल सकती है। हमसे खास बातचीत में M&M के ईडी राजेश जेजोरीकर ने पहले ही कहा था कि अक्टूबर-नवंबर में स्थिति सामान्य हो जाएगी। We believe that the quarter two was really bad. I mean, it was as bad as it can get. And, just to bring it alive for you, all of that disruption was caused by a $3 chip, which was made in Malaysia. And it is a very basic commodity kind of chip. But because Malaysia went into a major lockdown for almost 3 to 4 weeks, plants were completely shut, the semiconductor plants. You saw this kind of a shortage, which was completely unanticipated. And very hopefully something is not going to repeat itself again. We are seeing some kind of normalcy come back October, November, and hopefully we will come back to levels at least at which we were before the quarter two got as bad as it was. Fortunately for us, demand is very strong, and we are doing everything to ramp up and leverage the full opportunity that we are seeing on the auto demand side. Really, it's an inflation-led economy. We've tried to take aggressive price increases, but it is an inflation-led economy at this point of time. Our learning out of the commodity inflation cycle in the past has been that significant inflation of commodities does correct itself in the next cycle. And we would expect that in the next 3-year cycle, I'm talking a little long term at the moment, there would be a correction downward and things would equalize. And, when that happens, it makes things much easier from a margin and profit performance management than it is when you see this kind of inflation.
But we've taken all the actions that we can, very strong control on costs, and we've taken price increases pretty aggressively. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जहां कई कंपनियां आगे आ रही हैं, वहीं हीरो मोटोकॉर्प फंडेड कंपनी एथर एनर्जी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए क्या बड़ी तैयारी है, क्या है कंपनी की योजना? इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी उत्कर्ष, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में हमने हर कंपनी में ईवी स्पेस की क्या चल रहा है, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो न्यूज़ ब्रेक्स हो, आपको दिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कंपनी का नाम है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी हीरो की द्वारा बैक की हुई फाइनेंशियली कंपनी है और पिछले 4 से 5 सालों से मार्केट में है और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में है, लेकिन मोर और लेस काफ़ी समय तक ये बैंगलोर बेस्ड रहे और बैंगलोर में ही इन्होंने अपनी सेल्स और मार्केटिंग करी और अब जाके वो धीमे धीमे करके अपना जो दायरा है वो बढ़ा रहे हैं। उनके क्या प्लान है आगे? देखिए, सबसे पहला प्लान उनका ये है, उनके हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट है वो रेडी है। उनके हिसाब से जो उन्हें 1, 1.5, 2 साल बैंगलोर में दिए हैं एक प्रोडक्ट को बेटर करने में, वो अब कंप्लीट हो चुका है और इसलिए अब वो एक्सपेंशन मोड पर रहेंगे। वो कई जगहों पर डीलरशिप्स खोलेंगे और अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ उनका कहना है कि उनकी 1 लाख की कैपेसिटी है इस समय, वो फुल हो जानी चाहिए अगले साल तक और उस 1 लाख की कैपेसिटी को क्वाड्रुपल मतलब करीब 4 लाख तक करने की सोच रहे हैं, ये हमें बताया जा रहा है। अब इस प्रोसेस में क्योंकि 1 लाख से 4 लाख और प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे, अभी कंपनी के पास एथर 450X है। कंपनी के अनुसार और सूत्रों के अनुसार हमें मालूम पड़ रहा है कि अब कंपनी 2 नए प्रोडक्ट और लाएगी, तो एथर एनर्जी की तरफ से 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर बात आती है आखिरी में फंडिंग की, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कंपनी फंडिंग ढूंढ रही है और 1 साल के अंदर ही वो फंडिंग जुटा लेंगे अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके लिए। अभी तक ये बात नहीं सामने आई कि कंपनी कितनी फंडिंग उठाएगी और कितना फंडिंग के बारे में कंपनी सोच रही है, लेकिन फंडिंग के प्लान्स कंपनी के पास हैं, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है। एथर का प्लान, ओला का प्लान बड़ा अलग है। अगर आप देखें, एथर की जो स्ट्रैटेजी रही है वो ये थी कि पिछले 2-3 साल तक वो बैंगलोर में लगातार रहे और उन्होंने प्रोडक्ट को परफेक्ट किया और अब बड़ा कर रहे हैं। ओला ने जो कोशिश करी थी वो स्टार्ट विद द बैंग जैसे कहते हैं वो करी थी। अब लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि ये ओला होगा, एथर होगा, बजाज होगा, टीवीएस होगा या ओला की ही जिस कंपनी ने ओला को बैक किया हीरो मोटोकॉर्प, वो होगी जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ाएगी। और एक बात साफ है कि अगर आप 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं और ईवी में खरीदना चाहते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन होने वाले हैं। भारत के निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें या ना करें। सूत्रों की माने तो जल्द ही इसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि सरकार विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिल ला सकती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर सरकार जल्द ही कानून बना सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है, यानी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयर, गोल्ड और बॉन्ड्स की तरह क्रिप्टो करेंसी भी रख सकेंगे। हालांकि एक करेंसी के तौर पर क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सोमवार को संसद की स्थायी समिति की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद खबर आ रही है कि सरकार इस पर बैन लगाने के बजाय रेगुलेट करने की तैयारी में है। अगले 2-3 हफ्ते में कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हो सकती है। विंटर सेशन में क्रिप्टो से संबंधित बिल लाया जा सकता है। एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है। करेंसी के तौर पर पेमेंट और ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी। बतौर रेगुलेटर सेबी ही क्रिप्टो करेंसी की निगरानी करेगा, जबकि टैक्सेशन और अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सरकार क्रिप्टो पर क्या स्टैंड लेती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और एसेट क्लास के दायरे में लाने के पक्ष में दिखते हैं। क्रिप्टो का जो यूसेज है डिजिटल फॉर्म में करेंसी के तौर पे, वो भारत में यूज केस कम है, लेकिन जो एसेट क्लास है और जो यूसेज है बियॉन्ड करेंसी वो काफी ज्यादा है। और उसमें जो है सारी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं और इंडस्ट्री जो है वो उनका ये मानना है कि इसे एसेट क्लास का दर्जा अगर हम दे दें तो काफी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएगी लीगली और एनफोर्सेबिलिटी के तौर पे। दुनिया के कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी है, जबकि इक्का दुक्का देशों ने इसे करेंसी के तौर पर भी अपनाया है। वहीं भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम साफ नहीं है। आरबीआई लगातार क्रिप्टो को आर्थिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह बता रहा है, लेकिन अखबारों और टीवी पर क्रिप्टो में निवेश से जुड़े विज्ञापनों की भरमार दिखने लगी है और क्रिप्टो में निवेश भी बढ़ता जा रहा है।
सोमवार को संसद की स्थायी समिति के साथ बैठक के बाद क्रिप्टो कंपनियों ने लुभावने और भ्रामक विज्ञापन रोकने का फैसला किया है। क्रिप्टो से जुड़े प्लेयर्स भी इसको रेगुलेट करने के फैसले के साथ हैं, लेकिन वो निवेश की सीमा लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। एज एन एसेट इसको रेगुलेट करना ही सही रहेगा। तो आई कंप्लीटली एग्री विद रमेश जी। जो एक चीज मैं थोड़ा सा मना करूंगा वो है कि थोड़ा सा डिफर करूंगा वो है कि हम एक्सचेंजेस पे ये डेफिनेशन ना लगाए कि वो कितना उनका कोटा रह सकता है या कहाँ से कितने एसेट वो लोग लिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बट उसकी जगह पे हम उनके ऊपर ये लगाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे कि एजुकेट करने की। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की राय आरबीआई से अलग है, जो कि इस पर पूरी तरह बैन चाहती है। शनिवार को पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। बताया जाता है कि सरकार नई तकनीक के प्रोडक्ट को लेकर प्रोग्रेसिव रवैया अपनाना चाहती है। अगर सरकार क्रिप्टो को लीगल फ्रेमवर्क में ले आती है तो ये इसी सोच की तरफ एक मजबूत कदम होगा। ईटी नाउ स्वदेश। और अब बात आईपीओ की। आज से गो फैशन का आईपीओ खुल गया है, जिसका प्राइस बैंड 655 से 690 के बीच है। पहले दिन यह आईपीओ अब तक करीब 1.95 गुना से ज्यादा भर चुका है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 1013 करोड़ जुटाने की योजना है। वहीं टार्सन्स प्रोडक्ट्स की आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन है। अब तक इसका इशू 76 गुना से ज्यादा भर चुका है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 635 से 662 रुपए है। इन दो आईपीओ के अलावा आप सबकी नजर पेटीएम के लिस्टिंग पर है। कल पेटीएम की लिस्टिंग होने वाली है, इस पर अब सबकी नजर होगी। पेटीएम के आईपीओ की लिस्टिंग कैसी होगी ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कंपनी क्या करती है इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन तक का पूरा लेखा जोखा लेकर मौजूद हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालराज। जी डिम्पी, पेटीएम के बारे में विस्तार से बताएं। पेटीएम की लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले उसके जरा कुछ एक डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा इशू था और कितना पैसा जुटा रहा है और कैसे कैसे आगे चल के पैसे का इस्तेमाल होगा। कुल मिला के जो आईपीओ का प्राइस तय किया गया था वो 2150 है। जो इशू साइज़ है वो है 18,300 करोड़ रुपया, जिसमें ओएफएस भी है और एक फ्रेश इशू भी है। यानी कि जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं वो करीब 10,000 करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा, वो अपना स्टेक बेचेंगे इस कंपनी के अंदर, और करीब 8,300 करोड़ रुपया फ्रेश इशू के तौर पर होगा, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएगा। तो 18,300 करोड़ रुपये में से 8,300 करोड़ रुपए कंपनी के पास पहुंचेगा और 10,000 करोड़ रुपया जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल यहाँ पे बेचेंगे इस कंपनी के अंदर, जिस आईपीओ के जरिए। जो कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सॉफ्ट बैंक है, करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। आंट ग्रुप की करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी है। एलिवेशन ग्रुप करीब 17% की हिस्सेदारी रखता है। ये सारे बड़े बड़े ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी 30% की एंट ग्रुप में है। वो अपना हिस्सा करीब 4,704 करोड़ रुपये में बेचेगा। इसके अलावा अलीबाबा भी इसके अंदर स्टेक होल्डर था, तो वो भी 785 करोड़ रुपए में अपना कुछ एक स्टेक बेचने वाला है। इसमें विजय शेखर शर्मा भी, जो कि फाउंडर मेंबर है, वो भी करीब 402 करोड़ रुपए में अपना कुछ एक स्टेक बेचेंगे, ताकि वो अपना एक्विजिशन जो है इंश्योरेंस का लायक है उसकी डील को वो कंप्लीट कर पाएं। खैर, एंकर बुक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब तक रिकॉर्ड एंकर सब्सक्रिप्शन के तौर पर हमने देखा इसके अंदर, जो कि सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है 10 टाइम्स के। और पेटीएम में 8 बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा लगाया, और 21 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिक फंडिंग यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया इस आईपीओ में वो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि 21 इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ से ज़्यादा पर इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखेंगे तो आपको उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जो हमको रिसेंटली जो असेट लाइट मॉडल वाली कंपनीज़ हैं, जो पेटीएम जैसी ही कंपनीज़ हैं, उन्होंने जैसे मनी रेस की है। जैसे कि रिटेल का पार्टिसिपेशन वो 2 गुना भी नहीं हो पाया, QIP पार्टिसिपेशन वो सिर्फ 3 गुना ही रहा। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो करीब 1.25 गुना ही रहे हैं। अब कंपनी क्यों ये पैसा जुटा रही है? कंपनी ये कह रही है कि जो हम 18,000 करोड़ रुपये जुटा रहे हैं उसमें 10,000 करोड़ तो पहले के लोग लेके चले जाएंगे। जो पैसा बचेगा उसमें से हम 4,000 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा की मनी जो हमारा इकोसिस्टम अभी बना हुआ है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको और ठीक करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए खर्च होगा। और करीब 2,000 करोड़ रुपया वो कुछ नए बिजनेसेस में भी पैसा डालना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पेटीएम करीब 2,000 करोड़ से नए कौन कौन से कारोबार में और एंटर करने लगेगा। बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज भी आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ गई। निफ्टी 100 अंक गिरकर 17,900 के नीचे फिसल गया। वहीं सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। कैसा रहा दिन भर कारोबार और कहां सबसे ज्यादा गिरावट और कहां देखी गई तेजी, तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, आज बाजार में किस तरह की हलचल रही?
सबसे पहले ये जो है ऑलमोस्ट रिपीट टेलीकास्ट कह सकते हैं जो कल के सेशन में देखने मिले थे, और आज भी आखिरी आधे घंटे में फॉल जो है ज़्यादा बढ़ गई थी। ओवरऑल देखें तो निफ्टी जो है ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल जो 18,000 पॉइंट्स का था ऑलरेडी वो कम जो है कल क्लोज हुआ था, और आज जो है 100 बेसिस पॉइंट्स की और गिरावट देखने मिली और लगभग 17,900 पे आके जो है बंद हुई। निफ्टी बैंक में भी एक टाइप से प्रेशर देखने मिला, 265 पॉइंट्स का एक गिरावट देखने मिला और वो भी लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स भी 60,000 के नीचे था। तो ओवरऑल जो है याद रखिए कल एक्सपायरी का दिन है और लग रहा है मार्केट सेंटिमेंट जो है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जा रहे हैं। आपने पूछा था कि बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन था, तो वो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स थे, और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में भी आप ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी कह लीजिए ब्रॉडर मार्केट्स में उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ये लगातार दूसरे दिन जो सेमीकंडक्टर की इश्यूज हो रही है ऑटो स्पेस में उसको एड्रेस किया जा रहा है और फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड्स भी देना शुरू कर दिए, तो उसके कारण ऑटो स्पेस में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। बाकी सारे सेगमेंट्स में जो है एक टाइप से रेंज बाउंड रही हैं, कुछ फ्लैट रहे हैं और कुछ नेगेटिव रहे हैं, लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने मिली है वो है आपके फार्मा पैक और आपके रियल्टी पैक। इन दोनों में 1% से ज़्यादा इनके सेक्टोरल इंडेक्सेस में गिरावट आज दिन के ट्रेड में देखने मिली। इसके अलावा छुटपुट एरियाज़ में अच्छे स्टॉक्स में डील बेस्ड स्टॉक्स जैसे तानला प्लेटफॉर्म्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। उसके अलावा जेम एंड ज्वेलरी स्टॉक्स ले लीजिए या आप कपड़े के स्टॉक्स ले लीजिए, एपरल के, तो इनमें भी थोड़े बहुत जो है तेज़ी देखने मिली है ब्रॉडर मार्केट्स में। अब और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि कल के पेटीएम की आईपीओ की लिस्टिंग है, ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग होने वाली है 18,300 करोड़ के ऊपर। अब फोकस आते हैं स्टॉक्स पे, तो स्टॉक्स में हम लोग बात करेंगे निफ्टी गेनर्स की, तो सबसे पहले वन ऑफ द टॉप गेनर्स है आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस रहेगा और इनमें भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली है लगभग 3% का। और उसके अलावा एशियन पेंट्स में जो खबर आई थी कि प्राइस हाइक्स हो सकते हैं लगभग 4 से लेकर 6% जो है रिपोर्ट्स कह रहे हैं, उस पर जो है उसके कारण भी एक टाइप से रिवर्सल देख सकते हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जो ऑटो शेयर्स हैं उनमें भी तेजी दिखने मिली। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो हल्की मुनाफा वसूली देखने मिली है आपको यूपीएल में और रिलायंस जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है वो भी एक्चुअली इंडेक्स को ड्रैग किए हैं, लगभग 2% का जो है प्रेशर देखने मिला है। उसके अलावा ब्रिटानिया और सिप्ला जो रॉ मटेरियल कंपनी बेस्ड हैं जिनमें कमोडिटी इन्फ्लेशन लगता है उस पर जो है हम देख पा रहे हैं कि आज भी दबाव देखने मिल रहा है। अब ब्रॉडर मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं तो मिड कैप गेनर्स में स्पेशली मिड कैप आईटी स्पेस में बहुत एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। आप एल&टी टेक सर्विसेज ले लीजिए या टाटा कम्युनिकेशंस ले लीजिए, इनमें भी एक अच्छी जो है मूवमेंट देखने मिली, लगभग 3 से लेकर 5% तक का ग्रोथ देखने मिला। आरती इंडस्ट्रीज और टाटा पावर भी फोकस में थे और उनमें भी लगभग 3% का ग्रोथ देखने मिला। टाटा पावर जो ऑब्वियसली फोकस में है, ईवी का थीम चल रहा है और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की एक अच्छी अनाउंसमेंट भी आई थी कि जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उस पर सिर्फ अब कोल नहीं रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जीज को भी डाला जा सकता है बिना कोई नई एग्रीमेंट में घुसने के लिए। तो वो देख सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम पावर स्टॉक्स में एज अ होल भी देखने मिला था। और मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते तो हमने पहले कहा था कि मुनाफा वसूली चल रही थी रियल एस्टेट पैक में बिकॉज ऑफ कोर्स द वैल्यूएशन भी थोड़े महंगे हुए हैं और वहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज जो मार्केट का लीडर है उनमें जो है एक टाइप से दबाव देखने मिला था उनके स्टॉक प्राइस में। और उसके अलावा जो आपके धनी सर्विसेज है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है और ट्रेंट है, इनमें भी दिन में जो है दबाव देखने मिला था। ओवरऑल मार्केट्स का सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा और लगातार दूसरे दिन जो है प्रेशर देखने मिल रहा है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल एक्सपायरी में क्या होता है। और याद रखिए पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का भी कल लिस्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। मार्केट के उठापटक के बीच आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर पर लोगों की नजर है। वहीं लोग इन सेक्टर्स में किस तरह से निवेश करें, इसको लेकर मैराथन ट्रेंड्स एडवाइजरी के सीईओ अतुल सूरी का क्या नजरिया है, जानते हैं उनसे। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब एक मार्केट एक क्रैश से निकलता है, जो सेक्टर फर्स्ट ब्रेकआउट्स करते हैं, अर्ली ब्रेकआउट्स होते हैं, वहां पे आप बहुत बार लीडरशिप देखते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इस बुल मार्केट में सबसे आउट परफॉर्मिंग थीम या सेक्टर इज गोइंग टू बी आईटी। सबका वेटेज जो है सबसे ज्यादा बैंक्स पे है, कंसेंसस बुलिशनेस बैंक्स पे है। बैंक्स विल डू वेल, बट अगर एज ए इन्वेस्टर माय जॉब इज टू आउट परफॉर्म, ये आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आईटी में आएगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हमने रिसर्च किया है, हमने स्टडीज की है कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट सेक्टर होता है दैट बिकम्स अ लीडर। नंबर 2 आप देखिए कि अभी 1-1.5 महीने से कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन नहीं है, ये बल्कि वापस लाइफ टाइम हाई तक पुश हो रहे हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। एक करेक्शन में भी वो ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज देयर आर पीपल वेटिंग टू बाय। और तीसरी बात भाई, आप अपने आजू बाजू देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है।
हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है टेक्नोलॉजी में। आप घर पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने आईपीओ मार्केट देख लीजिए। सो द मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन इन द वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी। आज टेस्ला, अगर आप एलॉन मस्क की बात करें या अमेजॉन की बात करें, ये एक ऑटो कंपनी है, कंजम्पशन कंपनी है, बट अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस हुआ है वो टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बाजार की, महीने की, साल की छोड़िए, ये हमारे लाइफ टाइम में, हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल थीम जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। और द ब्यूटी इज कि इंडिया इज इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट, एंड इवन बेटर फॉर इन्वेस्टर्स इज वी हैव अ बिग चॉइस। सो हमारे पोर्टफोलियो में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और हमें लगता है ये जो सरताज है, जो एक बैंकिंग में रहा है ओवरवेट का, ये सरताज जो है, जो 2015 से 2020 तक जो आउट परफॉर्मेंस था, ये अब बैंकिंग से लेके ये सरताज चला जाएगा आईटी के हिसाब से, और उनके सर पे आ जाएगा ये। दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। फिर चाहे सामरिक मुद्दा हो या कूटनीतिक दांवपेच, चीन हर क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकलना चाहता है और उसकी यह ख्वाहिश आर्थिक मोर्चे पर पूरी होती नजर आ रही है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। एक तरफ आपसी रिश्तों में बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। ठीक उसी वक्त चीन से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका की नींद जरूर उड़ा दी होगी। ये खबर आर्थिक मोर्चे से आई, जिसमें चीन अमेरिकी बादशाहत को पछाड़कर आगे निकल गया। लंबी छलांग लगाते हुए चीन अमेरिका से ज्यादा अमीर बन गया। मैकेंजी की रिपोर्ट से खुलासा, चीन की संपत्ति में $113 ट्रिलियन का इजाफा। 2020 में चीन की संपत्ति $120 ट्रिलियन हुई। साल 2000 में चीन की संपत्ति सिर्फ $7 ट्रिलियन थी। यानी केवल 20 वर्षों में चीन की संपत्ति में $113 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। और इसी के दम पर चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर देश का तमगा अपने नाम करने में सफल रहा। और अगर अमेरिका की बात करें तो 2000 में अमेरिकी संपत्ति $90 खरब थी, लेकिन मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्रॉपर्टी की कीमतों में आई सुस्ती के चलते उसकी संपत्ति चीन के मुकाबले कम बढ़ी और वो अपना नंबर 1 का स्थान गंवा बैठा। आंकड़ों के मुताबिक चीन की संपत्ति अमेरिका से $30 खरब ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के जबरदस्त आर्थिक विकास और मजबूत इकोनॉमी अमेरिका पर भारी पड़ी है। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति $156 खरब थी, जो 2020 में बढ़कर $514 खरब पर पहुंच गई है। यानी पिछले 20 साल के दौरान दुनिया की संपत्ति 3 गुनी बढ़ गई है, जिसमें अकेले चीन की 1/3 हिस्सेदारी है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन दोनों में 2/3 से ज्यादा दौलत उन 10% अमीर परिवारों के हाथों में है, जिनकी नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों से अलग अगर दोनों महाशक्तियों के समीकरणों की बात करें तो दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बेचैन चीन के लिए ये सुकून भरा लम्हा भी है और उसके उन सपनों के सच होने की शुरुआत जैसा है जिसके लिए वो हर दांव लगाने को तैयार है। ET नाउ स्वदेश। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में अभी तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी नाकाम रहे हैं। सरकार की ओर से भले कुछ भी दलील दी जा रही हो, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर है। आला अदालत ने साफ तौर पर एक बार फिर कहा कि 24 नवंबर तक दिल्ली और केंद्र की सरकार वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाए, वरना वो सख्त निर्देश देने से गुरेज नहीं करेंगे। मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यु। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना रुख साफ किया और कहा कि वह निर्देश जारी करने से नहीं कतराएंगे अगर अगली सुनवाई की तारीख यानी कि 24 नवंबर तक दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पहले से बेहतर नहीं हो जाती। तब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएं जिसके चलते वायु प्रदूषण की दर कम की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि वह किसानों पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाना चाहते और उन्होंने राज्य सरकारों को यह कहा कि किसानों को और सहूलियतें मुहैया कराई जाएं ताकि वे पराली जलाने की बजाय उसे काटने पर ध्यान दे सकें। दिल्ली सरकार ने यह कहा कि हालांकि केंद्र सरकार के हलफनामे में पराली जलाने को केवल 35 से 40% जिम्मेदार ठहराया जा रहा था वायु प्रदूषण के लिए, लेकिन सफर की एक और स्टडी के तहत 58% स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन है
वायु प्रदूषण में। इसके चलते दिल्ली सरकार ने एक और स्टडी भी शुरू करवाई है जो इस वक्त IIT कानपुर द्वारा की जा रही है। हालांकि उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि ऑड इवन लगाने का तभी कुछ फायदा हो सकता है अगर NCR के शहरों में भी ऑड इवन लगाया जाए, अन्यथा केवल दिल्ली में गाड़ियां रोक पाएंगी और बाहर से दिल्ली में हर नंबर प्लेट की गाड़ियां जब तक आती रहेंगी तब तक वायु प्रदूषण की दर कम करना काफी मुश्किल रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में अब शराब के लिए पहले की तरह भीड़-भाड़ या मारामारी नहीं होगी, क्योंकि आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है, जिसके तहत अब प्राइवेट प्लेयर ही शराब की बिक्री कर सकेंगे और इसके लिए कई और नियम भी बनाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शराब की दुकानों का वो नजारा तो आपने देखा ही होगा जब एक छोटी सी खिड़की पर शराब के लिए भीड़-भाड़ उमड़ती थी और मारामारी रहती थी। लेकिन दिल्ली में आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे, जहां से लोग अपनी पसंद की शराब टेस्ट भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं, जिसमें रेस्तरां और बार भी शामिल हैं, जहां संगीत के साथ शराब का भी टेस्ट लिया जा सकेगा। नई दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि एयरपोर्ट पर दुकानें दिन भर खुली रह सकती हैं। नई नीति के तहत शराब विक्रेता MRP से ज्यादा दामों पर भी शराब बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही उन्हें स्टोर में वाइन सहित कम से कम 50 इंपोर्टेड शराब ब्रांड का स्टॉक करना होगा, जिससे शराब करीब 10% महंगी हो सकती है। हालांकि नई व्यवस्था के पहले दिन राजधानी में शराब की उपलब्धता पर थोड़ा असर पड़ सकता है। ET नाउ स्वदेश। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।